Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In our lecture, we are discuss about the disease which are related to the valves of the heart. You have studied about the valve of the heart. In heart, there are four valves are present. There is mitral valve and mitral valve which is present between the left atrium and ventricle, and tricuspid valve which is present between the right atrium and right ventricle. And there is an aortic valve and there is a pulmonary valve. There is an anatomical structure of the valve. The mitral valve is the bicuspid valve which is present in the left side of the heart, and the tricuspid valve which is also known as a which is present on the right side of the heart. There is an aortic valve and the pulmonary valve. The mitral valve is the bicuspid valve. The other three valves are the tricuspid valves. Tricuspid valves mean they have the three cusps, and the mitral valve and the bicuspid valve it is has only the two cusps. This is overall pathophysiology of the valvular disorders. When there is defect in the valve, then the backflow, then there is a backward heart failure and the forward heart failure. The backward heart failure include the aortic stenosis, that is limit the forward flow of the blood from the left ventricle, and there is aortic regurgitation, prevent the blood flow back into the left ventricle. When this is occurred, it causes increased blood volume and pressure in the left ventricle. Then left ventricle hypertrophy and dilation, and the blood from the left atrium cannot get into the left ventricle. On the other side, when there is a forward heart failure, not enough blood flow through the aorta for the body needs, then it causes angina pectoris. So when there is mitral stenosis, they limit the blood flow of the blood to the left ventricle, and the mitral regurgitation permit the blood backflow into the left atrium. It causes increase the blood volume and pressure in the left atrium, and the left atrium hypertrophy and dilation. This causes increase the blood volume pressure in the pulmonary vein and cause the pulmonary congestions, and increase the work to the right ventricle and the left ventricle and the right ventricle strain, and cause the right ventricular failure. So this is the overall pathophysiology of the diseases of the valve. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द वेल्वर स्टेनोसिस. स्टेनोसिस मतलब जो हमारे पास ओपनिंग है हमारे पास वेल्व की, वो क्या हमारे पास नैरो होगी, इसे हमारे पास क्या कहते हैं, वेल्वर स्टेनोसिस. द वेल लीफलेट मे बी कंफ्यूज्ड और थिकन दैट द वॉल्व कैन नॉट ओपन फ्रीली ऑब्स्ट्रक्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द ब्लड. It causes the chamber behind the stenotic valve is subject to the greater stress that generate the more pressure or the work to force the blood through the narrow openings. Then there is the valvular regurgitation, scarring and retraction of the valve leaflet, and weakening of the supporting structure is known as the valvular regurgitation. It means the valves of the heart is not properly closed and there is backflow of the blood. Incomplete closure of the valve is known as the regurgitation. So it could result of leakage and the backflow of the blood from the previous chamber. The causes of valvular disorders. So there is two type of the disorder of the valve. There is stenosis and regurgitation. स्टेनोसिस का मतलब जो वाल्व है कम्प्लीटली तंग हो गया हमारे पास, ठीक है. स्टेनोसिस का मतलब जो वाल्व है क्लोज हो गया, जिसकी वजह से जो एट्रियम से वेंट्रिकल और वेंट्रिकुलर से एरोटा में ब्लड जाना है वो प्रॉपर नहीं जा रहा. और रीगर्गिटेशन का मतलब क्या, मतलब वाल्व्स जो होती हैं वो सही तौर पर क्लोज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बैक फ्लो हो जाता है. सो देयर इज द कॉजेज ऑफ द वेल्वो डिसऑर्डर, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, रोमांटिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, वीकनिंग ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, and their infection disease of the heart, that is the endocarditis, pericarditis आ जाते हैं. So first we discussed about what is the mitral stenosis, the most common valvular disorder in the romantic fever. It is also caused by the bacterial infection, obstruct the blood flow from the left atrium to the left ventricle. When there is an obstruct of the blood from the left atrium to the left ventricle, in this diagram you can see when there is a reduced blood flow into the ventricle, there is atrial hypertrophy. When there is an atrial hypertrophy, there is the blood back up into the pulmonary vein, that is called the pulmonary hypertension, and reduce the cardiac output. The pathophysiology of the mitral stenosis is narrowing of the mitral valve. It causes the left atrium pressure hypertrophy of the left atrium and the blood flow to the left ventricle. The left atrium high pressure increase pulmonary pressure, pulmonary congestions, and it is exchange of oxygen or carbon dioxide level is decreased, then it causes the right heart side failure. Then the blood flow to the left ventricle, it decrease cardiac output, cause the left ventricular atrophy and the fatigue.
The clinical manifestation of the patient with mitral stenosis, exertion, dyspnea, and the fatigue is most common in the patient with mitral stenosis. Then the orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, cough, cyanosis, right-sided failure, distended neck, peripheral edema, hepatomegaly, abdominal distension, and when we auscultate the patient with mitral stenosis, it as one followed by an opening snap created by the forceful opening of the mitral. देन एक्सरे करवाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट एट्रिया की आपको एलार्जमेंट नजर आएगी हमारे पास, ठीक है। इंटरवेंशन क्या करनी है विद माइट्रल स्टेनोसिस में, सोडियम पेशेंट को अपने रिस्ट्रिक्ट करना है, डायूरेटिक्स देने हैं टू रिलीव द पल्मोनरी कंजेशन, ब्लड रेस्ट करना है, सिटिंग पोजीशन में रखना है, डिजिटालिस देंगे, इंप्रूव द कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पेशेंट को देंगे हमारे पास, सर्जिकल इंटरवेंशन पेशेंट माइट्रल कमर्शियोटोमी करेंगे, सेपरेशन एंड इncision ऑफ द स्टेनोज्ड वेल लीफलेट एट द बॉर्डर एंड द कमर्शियल, और साथ में बलून माइट्रल वेल्वोप्लास्टी करेंगे हमारे पास, या फिर अगर बहुत ज़्यादा इशू हो जाए तो फिर वेल्व की रिप्लेसमेंट करेंगे। ये बलून माइट्रल वेल्वोप्लास्टी क्या होती है हमारे पास, परक्यूटेनियस माइट्रल वेल्वोप्लास्टी। इसमें हम बाहर से, जिस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास आर्टरीज की हमारे पास, ठीक है, अथीरोस्क्लेरोसिस हो जाए, ठीक है, इसमें ओपनिंग करने के तो इसमें बाहर से एक बलून एंटर करते हैं जिसमें जो वाल्व है वो क्लोज होंगे, तो इन बलून के ज़रिए से वहाँ पे जाके इसमें एयर क्रिएटेड और फिर जो वाल्व क्लोज है इसके ज़रिए से ओपन हो जाएंगे हमारे पास, फिर इसके ज़रिए से जो वाल्व है इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास और ब्लड फ्लो ज़्यादा। नेक्स्ट इज द माइट्रल रिगर्गिटेशन। The mitral regurgitation is incomplete closure of the mitral valve. Rheumatic disease is the predominant cause. It is also due to the congenital abnormality, infective endocarditis and the myocardial infarction. Mitral regurgitation में क्या होता है कि जो हमारे पास जो valves हैं वो सही तौर पर बंद नहीं होते हमारे पास, जिसकी वजह से नैरो एरोटिक valves है और लीकेज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। लीकिंग माइट्रल स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी आ जाएगी माइट्रल regurgitation. As a result of the regurgitation of the blood during the systole, the left atrial dilation, hypertrophy, pulmonary congestion हो जाएगी और इसके ज़रिए से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन और हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी भी सेम क्या हमारे पास, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द माइट्रल वैल्व है, बैक फ्लो हो जाएगा जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंजेक्शन बाय द लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, साथ में लेफ्ट एट्रियल हाइपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेफ्ट एट्रियल की हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और साथ में राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर इंक्रीज करेगा और राइट साइडेड हार्ट फेलियर आ जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेशेंट विद माइट्रल रिगर्गिटेशन में कार्डिक और प्रीडोमिनेंट कंप्लेन, एक्सर्शन, डिस्निया, कफ, पल्मोनरी कंजेशन, पैल्पिटेशन आएगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा। अस्कल्टेशन करेंगे तो आपको साउंड आएगी जिसमें ब्लोइंग, हाई पिच, सिस्टोलिक मर्म, S1 साउंड जो कि वो डैमेजिंग होगी। इंटरवेंशन रिस्ट्रिक्ट द फिजिकल एक्टिविटी, प्रिवेंट द फटीग एंड डिस्निया, सोडियम इंटेक को प्रिवेंट करना है हमारे पास, डायूरेटिक्स देने हैं, डिजिटालिस देने हैं, AC इनहिबिटर करेंगे और सर्जिकल मैनेजमेंट में पेशेंट का हमारे पास वेल्वोप्लास्टी और फिर वेल्वल रिप्लेसमेंट करेंगे। माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स हमारे पास, ठीक है, यानी माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स के हमारे पास यानी जो वेल्व्स का जो कस्प है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। मैलफंक्शनिंग ऑफ द माइट्रल वेल्व फॉलो द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द लेफ्ट एट्रियम causing the progressive enlargement. Then the mitral valve prolapse आ जाता है when one or both of the valve leaflet bulge into the left atrium during the ventricular contraction is known as the mitral valve prolapse आ जाता है, ठीक है। यानी जो हमारे पास वेल्व्स के जो कस्प होते हैं वो तो या तो हम एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन जब भी एक दूसरे के ऊपर आ जाए जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर जाते हैं, ठीक है। ये ड्यू टू द इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स की वजह से होते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ वन और द बोथ वेल्व्स, लीफलेट आ जाते हैं। इनलोगेटेड स्ट्रेच द कॉर्डिया टेंडन एंड द पैपिलरी मसल, रिगर्गिटेशन में होकर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक्सटर्नल हार्ट साउंड सुनाई देंगे, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इंटरवेंशन पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोलैप्सिक टू प्रिवेंट द एंडोकार्डाइटिस के लिए देंगे हमारे पास, एंटी रिदमिक मेडिसिन देंगे, पेन के लिए पेशेंट को नारकोटिक्स देंगे हमारे पास, ठीक है। और फिर अगर मेडिसिन से ट्रीट तो सर्जिकल प्लान करेंगे। फिर एरोटिक स्टेनोसिस है, मे बी ड्यू टू द रूमेटिक हार्ट डिजीज है, अरिथ्रोस्क्लेरोसिस, कंजेनिटल हार्ट फेलियर की वजह से नैरिंग ऑफ द एरोटिक वेल्व, द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एरोटा जो होती है वो कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर इन द लेफ्ट वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। एरोटिक स्टेनोसिस है हमारे पास, ठीक है। एरोटिक स्टेनोसिस में क्या हो, इंक्रीज इन द आफ्टर लोड ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से जो रिड्यूस कार्डिक आउटपुट है, रिड्यूस कार्डिक आउट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी हमारे पास, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द एट्रियम हो जाएगा और साथ में पल्मोनरी कंजेशन, राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन आ जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है हमारे पास, ठीक है, एरोटिक स्टेनोसिस में क्या होगा, स्टिफनिंग एंड नैरिंग ऑफ द एरोटिक वेल्व है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी है, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। जब इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ द लेफ्ट एट्रियम में जैसे पल्मोनरी कंजेशन है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा।
अगर लेफ़्ट वेंटिकुलर की हाइपरट्रॉफी है तो इसकी वजह से कंप्रेशन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज है हमारे पास, ठीक है, और कंप्रेशन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरी की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और फिर हमारे पास मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के एरोटिक स्टेनोसिस के साथ अगर पेशेंट आते हो तो फटीग, एक्सर्शन, डिज्निया के साथ आएगा। फर्स्ट सिम्टम ड्यू टू द डिक्रीज कार्डिक आउटपुट एंड द पल्मोनरी कंजेशन की वजह से। पेशेंट चेस्ट पेन के साथ है जो कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इन द पेशेंट विद एरोटिक स्टेनोसिस की वजह से। एक्सर्शन, संकपी के साथ, वर्टिगो, पीरियड ऑफ द कन्फ्यूजन, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, वीकनेस और थर्मिया के साथ हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इंटरवेंशन इसमें क्या करनी है, पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ करनी है, जीटीटेलिस सोडियम रिस्ट्रिक्शन करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देनी है। अगर पेशेंट को फार्माकोलॉजिकल से मेंटेन नहीं हो रहा तो पेशेंट को हम बैलून एरोटिक वेल्वोप्लास्टी और एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाएंगे। ये तो थी हमारे पास एरोटिक स्टेनोसिस आ जाते हैं। फिर इसी तरह एरोटिक रीगर्गिटेशन है, मतलब ये भी ड्यू टू द रोमैटिक फीवर मोस्ट कॉमन कॉज आता है। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। फेलियर ऑफ द एरोटिक वेल्व टू क्लोज टाइटली कॉज द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल नोन एज द एरोटिक रीगर्गिटेशन। इसकी कंपैथोफिजियोलॉजी इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द एरोटिक वेल्व है जिसकी वजह से ब्लड जो है बैक फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की तरफ चलेगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा हो गया, लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल प्रेशर और फिर राइट साइडेड फेलियर की तरफ चल जाएगा। पेशेंट की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिम्टोमेटिक मोस्टली होता है, लेकिन पेशेंट जो हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ द हार्ट बीट एंड पैल्पिटेशन स्पेशली व्हेन द पेशेंट इज लाइज ऑन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, टैकीकार्डी के साथ आ जाएगा हमारे पास पेशेंट, बाउंडिंग पल्स, माँ के रोटेड आर्टरी पल्सेशन के साथ आ जाएगा। कार्डिक मसल की फटीग, एक्सर्शन, डिस्निया, चेस्ट पेन के साथ आएगा। हार्ट पेशेंट हमारे पास पेरिफेरल एडिमा के साथ आएगा। मैनेजमेंट, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देनी है, पेशेंट को एक्सर्शन से पेशेंट करना, एक्सरसाइज को रिमूव करना है, पेशेंट ना करे, ज़्यादा वेज़ोडाइलेटर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, इसी नहीं बटर एरोटिक, और फिर मेडिकल मैनेजमेंट अगर नहीं होता पेशेंट को हम सर्जिकल मैनेजमेंट हम एरोटिक वेल्वोप्लास्टी करेंगे। फिर हमारे पास है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है जिसमें अकर बिटवीन द एरोटिक एंड माइट्रल स्टेनोसिस में भी ड्यू टू द रोमैटिक डिजीज़ की वजह से ब्लड फ्लॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकुलर की तरफ जो है वो हमारे कम हो जाएगा जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट कम हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो कम हो जाएगी। सिम्टम्स जो होती है राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, हेपेटोमेगाली की वजह से पेरिफेरल एडिमा और नेक वेन की एनलार्जमेंट हो जाएगी। ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन में अनकॉमन है कॉज्ड बाय द राइट हार्ट साइड फेलियर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस की वजह से एनलार्जमेंट हो गया हार्ट कार्डिक फेलियर की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट हमारे पास एक्टिव पल्सिंग इन द नेक वेन है, स्वेलिंग ऑफ होगी राइट साइड पे सारी, फीट एंकल की वजह वीकनेस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, मर्मर और स्कल्टेशन साउंडिंग। फिर आते हैं पल्मोनिक वेल्व स्टेनोसिस आता है। पल्मोनिक वेल्व स्टेनोसिस जो होता है वो रेयर होता है, फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी ड्यू टू द नैरिंग जो होती है वो हमारे पास कम हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बैक टू द राइट वेंट्रिकुलर एंड द राइट एट्रियम हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी कंपनसेट फॉर द ब्लड फ्लो। साइनस सिम्टम पेशेंट जो होते हैं वो हमारे पास सिस्टोलिक मर्मर के साथ आएगा, फटीग, डिस्निया, पुअर वेट गेन, फेलियर टू द थ्राइव इन इन्फेंट और हेपेटोमेगाली के साथ आ जाएगा। पल्मोनरी रीगर्गिटेशन जो होती है वो हमारे पास रेयर है, ब्लड फ्लो बैक इनटू द राइट वेंट्रिकुलर एंड राइट की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, सिम्टम राइट साइडेड हार्ट फेलियर की तरफ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये थी हमारे पास स्टेनोसिस और रीगर्गिटेशन ऑफ द वेल्व्स आ जाती है। अब ये तो थी हमारे पास, इनके साथ साथ हमने इंटरवेंशन क्या क्या करनी है। देयर वेल्व्स का अब हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट है कि अगर आप फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करें, वेल्व्स रिपेयर नहीं हो रहे तो वेल्व्स को रिपेयर करने के लिए हम सर्जिकल मेथड जिसमें हमारे पास वेल्वोप्लास्टी है। वेल्वोप्लास्टी इज द रिपेयर ऑफ द कार्डिक वेल्व। द पेशेंट डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूस एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन, यूजुअली रिक्वायर द कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन। इट्स इंक्लूड द कमशरोटमी टू सेपरेट द फ्यूज्ड लीफलेट आ जाते हैं। इसमें बलून वेल्वोप्लास्टी है परफॉर्म इन द कार्डिक कैथेटर लैब, बलून इन्फ्लेटेड फॉर 10 to 30 सेकंड। इन्फ्लेशन कॉमन यूज फॉर माइट्रल एंड द कैरोटिड स्टेनोसिस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। क्लोज सर्जिकल वेल्वोप्लास्टी डन इन द OR में अंडर द जनरल एनेस्थीसिया, माइल्ड मिड स्टर्नल इंसिजन एंड द स्मॉल होलिंग द कट इनटू द हार्ट आ जाते हैं हमारे पास। फिर ओपन कमर्शरेटमी है डन डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द वेल्व आ जाती है, इसके साथ करते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर एनवोप्लास्टी इज रिपेयर ऑफ द वेल्व एनवल्स जंक्शन ऑफ द वेल्व लीफलेट एंड द मस्कुलर हार्ट वेल्व के जरिए से। इस फिर आता है हमारे पास क्रोडोप्लास्टी इज द रिपेयर ऑफ द क्रोडिड टेंडिन आ जाता है, डन फॉर द माइट्रल वेल्व इंगर्गिटेशन कॉज बाय द स्ट्रेच आ जाता है। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास किस तरह हम एनवोप्लास्टी करते हैं हमारे पास, ठीक है। देन द वेल्व रिप्लेसमेंट, ये तो थी हमारे पास, हमने पेशेंट वेल्व्स को क्या करना है, रिपेयर करना है। अब वेल्व्स भी अगर हमने मेडिकेशन भी करी है, वेल्व की रिपेयर भी करी, लेकिन इसके बावजूद हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करा तो हम क्या करेंगे, वेल्व को पूरा रिप्लेसमेंट करेंगे। इसमें मैकेनिकल वेल्व्स आ जाते हैं हमारे पास, टिश्यू एंड द बायोलॉजिकल वेल्व्स आते हैं। मैकेनिकल में
क्या हो गया हमारे पास, इसमें हम टाइटल डिस्क वेल्व मोर ड्यूरेबल यूज़ फॉर द यंगर पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें रिस्क क्या पेशेंट का थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाएगा। इसमें पेशेंट का लॉन्ग टर्म एंटीकोएगुलेंट थेरेपी का यूज़ करते हैं, लेकिन टिश्यू और बायोलॉजिकल में जीरो ग्राफ्टिंग है, होमोग्राफ्ट है। जीरो ग्राफ्ट में मतलब कि हमेशा हमारे पास पेशेंट अपने लेते हैं, होमोग्राफ्ट और कैडवर टिश्यू ऑफ द डोनेशन के साथ लेते हैं। लॉन्ग टर्म एंटीकोएगुलेंट थेरेपी और एंटीबायोटिक प्रोलैप्सिस इसमें यूज़ करते हैं। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है हमारे पास किस तरह हम पेशेंट को वेल्व्स को जो होती है उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं हमारे पास, ठीक है। वेल्व प्रोस्थेसिस है, अब पहले तो था कि हम वेल्व को रिपेयर करेंगे, फिर हम इसको क्या कहें रिप्लेसमेंट। अब प्रोस्थेसिस मतलब आर्टिफिशियल लगाएंगे। टू टाइप है, पहले आपको बताया कि मैकेनिकल है और साथ में बायोलॉजिकल है हमारे पास, ठीक है। अब नर्सिंग इंटरवेंशन पूरी प्रोसेस में क्या करना है, कमर्शियटमी इज एन ओपन हार्ट सर्जरी दैट रिपेयर द माइट्रल वेल्व दैट इज नैरो फ्रॉम द माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस। ड्यूरिंग दिस सर्जरी अ पर्सन इज पुट ऑन द हार्ट लंग्स बाईपास मशीन, देन द सर्जन रिमूव द कैल्शियम डिपॉजिट एंड द अदर स्कार टिश्यूज आ जाते हैं, देन द वेल्व को रिप्लेसमेंट करते हैं। फिर डेली असिस्टेंट जिसकी ज़रूरत होती है वो पेशेंट करते हैं, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन करनी है, नर्स ने ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल को चेक करना है, मेडिकेशन का यूज़ करना है, नर्स ने उसके डाइट प्लान को देखना है, मेडिकेशन जो डॉक्टर ने दी हुई है बिफोर आफ्टर प्रोसीजर देनी है हमारे पास, ठीक है। पेशेंट को हर किस्म की एनजाइटी से स्ट्रेस से रिमूव करना है, स्मोकी सेसेशन एक्सरसाइज और सारी पेशेंट को डाइट प्लान के बारे में बताना है हमारे पास, ठीक है। ये नर्सिंग इंटरवेंशन द पेशेंट विद ड्यूरिंग द वेल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेप्टल रिपेयर। द सेप्टल द एट्रियल द वेंटिकुलर सेप्टल में हैव एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आ जाते हैं। अनदर मोस्ट सेप्टल डिफेक्ट आर द कंजेनिटल एंड द रिपेयर ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड द चाइल्डहुड आ जाते हैं। यानी जो एट्रिया और जो हमारे पास दोनों एट्रियम के दरमियान जो सेप्टल है हमारे पास, ठीक है, अगर ये किसी वजह से एबनॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं दिल में सुराख है, जिसे पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है, इसको रिपेयर करने का मेथड को हम क्या कहते हैं सेप्टल रिपेयर। द रिपेयर ऑफ द सेप्टल डिफेक्ट इज रिक्वायर्ड जनरल एनेस्थीसिया एंड द कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। द हार्ट इज ओपन एंड द पेरिकार्डिया एंड सिंथेटिक पैच इज यूज्ड टू क्लोज द ओपनिंग आ जाते हैं। डेट्स आर अबाउट द वैल्वुलर हार्ट डिजीज आ जाती है। थैंक यू।